Hi, hello bachcho, how are you? In part 1 of depreciation, we understood about its basics, the methods of depreciation and how the accounting treatment is done. In this video, we'll apply all those concepts in solving the questions. So let's start and understand how to apply those concepts which we understood in part 1 in solving the question. So the first is straight line method of depreciation. And the question says in this PPT that on January 1st, 2021, XYZ purchased a second-hand plant costing rupees 2 lakh and spent rupees 10,000 on its overhauling. It also spent rupees 5,000 on transportation and installation of the plant. It was decided to provide for depreciation at the rate of 20% on original cost. The plant was destroyed by fire on July 31st, 2023 and an insurance claim of rupees 50,000 was admitted by the insurance company. Prepare plant account and depreciation account. Depreciation is charged to asset account. Assume that the company closes books on December 31st every year. So the first three things which we require before starting the question is, what is that? That is value of fixed assets. And the second is, what is the method of depreciation? And third, what accounting treatment we're gonna do in this question. So let's understand. पहला value of fixed assets कैसे निकालते हैं? जैसे कि बताया कि जब तक एसेट रेडी ना हो जाए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज तब तक ऑल द एक्सपेंसेस विच वी इनकर्ड वी कैपिटलाइज और वी एड इनटू द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. सो यहाँ पर अगर हम देखें प्लांट उसने 2 लाख रुपए का खरीदा, 10,000 उसने उसके ओवरहॉलिंग के लिए गए. सो दिस इज द मेजर एक्सपेंस क्योंकि उसने जो भी पुराना प्लांट है उसको जो खरीदा उसको ओवरहॉल करने के लिए जितने भी एक्सपेंस है वो 10,000 रुपए के. ओवर एंड अबव उसने क्या किया, 5,000 रुपए खर्चे किसकी चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए. तो अपने प्लांट में लाके इंस्टॉल किया होगा, वहां से जहां से भी खरीदा हो ट्रांसपोर्टेशन. तो 2 लाख फॉर प्लांट कॉस्ट, 10,000 इज ओवरहॉलिंग एंड 5,000 इज ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन. नाउ इफ वी ऐड ऑल दीज इट कम्स टू 2,15,000. सो विद द कॉस्ट ऑफ टोटल स्पेंड, टोटल खर्चा कितना किया हमने, 2,15,000 रुपए खर्चा किया. नाउ माई प्लांट इज रेडी टू बी यूज. दैट्स अ part 1. I mean one thing which we need to understand. The second is method of depreciation. So we look at, it says it was decided to provide for depreciation at the rate of 20% on original cost. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कौन सा method of depreciation he is talking about. He is talking about straight line क्योंकि जो परसेंटेज उसने दिया वो ओरिजिनल कॉस्ट पे एप्लीकेशन के लिए दिया है. सो यहाँ से हमें पता क्या लगा कि हमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा यूज करना है, स्ट्रेट लाइन. एंड नाउ कम्स टू द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए इफ विल गो थ्रू द सेकंड लाइन in this second line of from the last, depreciation is charged to asset account. यहाँ पर उसने बोला है कि depreciation चार्ज किस पे हो रहा है, asset account में. इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि asset की वैल्यू वो reducing balance पे रखेगा in the books और net book value दिखाएगा rather than the original cost. So यहाँ से हमें क्या पता लगा कि asset to be shown at net book value on balance sheet. So these are the 3 elements which we require और हमें ज़रूरत है to understand before starting the question. So now we know ki what this question is all about. So we start and now it says to prepare asset account and plant account and depreciation account. So plant account हम बनाते हैं, उससे पहले हम ये निकालते हैं कि हमारा depreciation होगा कितना, क्योंकि original cost है, original cost is 2,15,000 and depreciation का rate उसने क्या दिया हुआ 20%. So 20% if we apply on 2,15,000 it comes to 43,000. अब these 43,000 we gonna apply every year because ओरिजिनल कॉस्ट पे उसने परसेंटेज दिए तो ओरिजिनल कॉस्ट तो चेंज होने नहीं वाले, इट विल रिमेन सेम. एंड इफ वी अप्लाई द सेम 20% एवरी ईयर, द कौन सा अमाउंट आएगा 43,000. सो 43 बिकम माय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर विच आई एम चार्ज एज ए डेप्रिसिएशन. आई चार्ज एज ए डेप्रिसिएशन. सो लेट्स सी, लेट्स प्रिपेयर प्लांट अकाउंट. सो दिस इज द वे वी प्रिपेयर द लेजर ऑफ द प्लांट अकाउंट. सो ऑन 1st जनवरी हमने प्लांट खरीदा जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 2,15,000. तो प्लांट खरीदा तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा, तो यहाँ पर लेजर पोस्टिंग किया होगा टू बैंक अकाउंट 2,15,000. अब नाउ 31 दिसंबर 21 हमें उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. डेप्रिसिएशन किस रेट पे होगा, क्योंकि 43,000 ही चार्ज होगा बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट अप्लाई करना है. तो बाय डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर लिख दिया विच इज 43,000. अब यहाँ बैलेंस कितना बचा इस लेजर में ऑफ द प्लांट अकाउंट एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर. So 2,15,000 on the debit side, 2,15,000 on the credit side and the balance remains 1,72,000. अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो उसमें असेट की, इस प्लांट की वैल्यू कितनी नजर आएगी 1,72,000. इसका मतलब हमने असेट में से उसका ओरिजिनल कॉस्ट
ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस कर दिया, विच ही सेज, बिकॉज ही सेज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन असेट अकाउंट, तो असेट पे हमने चार्ज कर दिया, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया बीइंग ए लॉस एंड असेट बीइंग बाय डिक्रीजिंग, एंड द असेट का जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है और असेट वैल्यू डिक्रीज क्रेडिट साइड में थी, इसलिए हमने क्रेडिट में उसको रिड्यूस कर दिया। तो कितना डेप्रिसिएशन से, तो कितना अमाउंट हमारे पास बचा 1,72,000। नेक्स्ट ईयर दिस विल बिकम माई बैलेंस बीडी 1 lakh, वी ब्रॉट इट डाउन नेक्स्ट ईयर 1st January 2022 बैलेंस बीडी। नाउ अगेन 31st December आई एम गोना चार्ज डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, सेम 43,000, एंड द बैलेंस which will be on 31st December 1,72,000 on the debit side, 1,72,000 on the credit side, and the balance remains 1,29,000. So again on 1st January 23 this become my opening balance 1,29,000, पर 23 के 31st जुलाई में उसने बोला है फायर से ये प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। अब फायर से प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया तो अभी मुझे डेप्रिसिएशन जो मैं चार्ज करूंगा टिल 31st जुलाई, तो इसका मतलब बिकॉज उसने दिया 31st December इज द बुक्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बुक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक कैलेंडर ईयर हो गया जनवरी टू दिसंबर बुक्स मेंटेन करने के लिए। और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, अब मुझे 7 महीने का लगाना है फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। तो अगर मैं 43,000 को 7 महीने के हिसाब से निकालूंगा देन द डेप्रिसिएशन कम्स टू 25,883। 43,000 इज द डेप्रिसिएशन जो कि पूरे साल का है, तो 7 महीने के लिए निकालने के लिए 43,000 into 7 divided by 12 which comes to 25,083। That's the first thing to know about कि हमें जितना पीरियड तक का दिया उतने पीरियड तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, तो इसलिए वी चार्ज इट फॉर 7 months। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग बैलेंस 1,29,000 इज, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या एडमिट किया है, इंश्योरेंस कंपनी 50,000 रुपये एडमिट किए हैं। सो अगर 50,000 रुपये मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से उसने दिए नहीं है, अगर मिल जाते तो मैं क्या करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, पर अभी मेरे को मिले नहीं है तो इसलिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, तो मेरा डेटर्स बन गया इंश्योरेंस कंपनी। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 50,000 से हमने यहाँ पर अपना असेट का रिमेनिंग जितना भी बैलेंस बचा वो उसमें 50,000 ट्रांसफर कर दिया। अब कितना बचा 1,29,000 डेबिट 1,29,000 क्रेडिट। तो अगर आप देखो कि मेरी कॉस्ट ऑफ द असेट, क्योंकि 31st जुलाई को फायर की वजह से माई दिस प्लांट हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड, मेरी उस टाइम पे 31st जुलाई को मेरी वैल्यू क्या थी 1,29,000, उसमें से डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया 25,083 का, 50,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो बाकी जो बचा वो क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ, क्योंकि मेरे को 1,29,000 पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि डेबिट साइड में 1,29,000 है और क्रेडिट साइड में देखें अगर टोटल में देखता हूँ डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस कंपनी जितना पैसा मिलेगा दैट विल बिकम 70,083, तो इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू और मोर देन, अगर ये ज्यादा होता विद द वैल्यू दैट इज 1,29,000 ऑन 31st जो ऑन 1st January 23, तो मेरे को प्रॉफिट निकल गया था, पर अभी क्योंकि वो कम है बिकॉज डेबिट साइड में 1,29,000 है जो मेरी एसेट की वैल्यू है एट ऑन 1st January, और उसके बाद डेप्रिसिएशन और जो इंश्योरेंस कंपनी से मिला द बैलेंस रिमेन्स विल चार्ज टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिकॉज मेरा लॉस है एंड लॉस वी चार्ज टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अगर हम एंट्री देखें तो क्या होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, सो मीन्स वी आर डेबिटिंग इनटू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में क्या किए जाते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, और प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में क्या आएगा इनकम और गेन्स। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास कितना हुआ 53,917 का लॉस हुआ। दिस इज वी प्रिपेयर नाउ द प्लांट अकाउंट। नाउ लेट्स प्रिपेयर दी डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हमारा फर्स्ट एंट्री क्या रहती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट किया होगा हमने, क्योंकि तो अब 31st दिसंबर को हमने क्या किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे टू प्लांट अकाउंट, क्योंकि हमने प्लांट की वैल्यू रिड्यूस करी कितने से 43,000 से। अब यहाँ पर देखें जी क्या हो गया, अब इस डेप्रिसिएशन को क्योंकि मैं हर साल क्या करता हूँ, अगर पार्ट 1 में देखा होगा मैं इस डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देता हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, तो मैं इसका अकाउंट को क्लोज करूंगा 43,000 प्रॉफिट लॉस से मैं चार्ज कर दूंगा, तो यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं बचा क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज कर दिया। लाइक आई सेड ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस विद डेबिट ऑफ द ईयर, और वी कैन से जो भी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड वी ट्रांसफर्ड ऑल द एक्सपेंसेस इन रेवेन्यू टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हमने 43,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर 2021 के लिए क्लोज हो गया, उसमें कोई बैलेंस नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर 31st December 22, अगेन क्योंकि फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करना और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो सेम डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, वो हम प्लांट अकाउंट में भी देख सकते हैं कि 43,000 चार्ज किया हमने, तो 43,000 यहाँ पर चार्ज हुआ, और फिर अगेन द सेम वे विच
charge it to the profit and loss account and there is no balance 43,000. अब 31 जुलाई को क्योंकि मेरा आग लगी प्लांट और उससे प्लांट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो डेप्रिसिएशन तो 31 जुलाई तक का मैंने चार्ज करा और वो कितना है, तो प्लांट अकाउंट को मैंने रिड्यूस किया विथ 25,083. अब सेम वे मैं इसको कहाँ चार्ज करूँगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से. सो मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किया एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का 25,083 आ जाएगा एंड नाउ दिस बिकम्स बैलेंसिंग आउट 2583 कोई बैलेंस उसमें नहीं रहा. सो आर यू क्लियर नाउ कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें कैसे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं फॉर प्लांट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब सेम क्वेश्चन लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ, अगर ये सेम क्वेश्चन हमें दिया होता रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स मूव. सेम क्वेश्चन है. अब सबसे पहले क्या चीज चाहिए हमें, 3 elements we need to check. What are those? Value of fixed assets which is 2,15,000. Method of depreciation, अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे, it was decided to provide for depreciation at 20% on return down value. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, on original cost. तो सेम परसेंटेज we have to apply on the original cost. पर यहाँ पर क्या है, परसेंटेज तो सेम है, पर किस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है, जो कि वैल्यू जैसे जैसे वैल्यू रिड्यूस हो रही है रिड्यूस वैल्यू पे और रिटर्न डाउन वैल्यू पे विल अप्लाई दिस परसेंटेज. सो हमें मेथड पता लग गया. अब डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग होना है वो किस हिसाब से होना है, अगर हम देखेंगे इसमें यहाँ लास्ट में जो लिखा हुआ है प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप में बता रहा है कि उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं. तो उसने अपने आप ही बता दिया कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा. सो मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मुझे बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे ही एसेट को दिखाना है. क्लियर है. इसलिए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बता रहा है. अगर आप ध्यान रखो, जब असेट पे चार्ज कर रहा था मैंने एंट्री क्या की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. पर यहां पर इस केस में मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो करूंगा पर क्रेडिट में असेट को रिड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि वो असेट से चार्ज नहीं कर रहा. तो मैं क्रेडिट में क्या करूंगा, मैंने क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और वी कैन से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट किया. ओके, सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स मूव. यहां पर सबसे पहले क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में मेरा डेप्रिसिएशन चेंज होता रहेगा, इट विल नॉट रिमेन सेम फॉर ऑल ईयर्स, तो मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. तो सब अभी एट द प्रेजेंट जब मेरा ईयर स्टार्ट होता है तो मेरी वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी है, 2,15,000. अब फर्स्ट ईयर के लिए मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 20% ऑन 2,15,000 विच कम्स 43,000. ओके, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और वी कैन से 2021 व्हाट इज माय वैल्यू 1,72,000. तो अब नेक्स्ट ईयर मैं कितने पे चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन, 20% तो चार्ज करूंगा पर 1,72,000 पे करूंगा. स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं 2,15,000 पे बिकॉज दैट वाज माय ओरिजिनल कॉस्ट उस पर चार्ज करता. अब जैसे जैसे वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी उस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा. तो यहाँ पर मैंने 1,72,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो अमाउंट कम्स 34,400. सो एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर वी कैन से 2022 व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू, दैट इज 1,37,600. अब अगेन 23 के लिए कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. अब 23 पूरे साल तो मेरे पास प्लांट था नहीं क्योंकि 7 मंथ्स के बाद फायर के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गया. तो मुझे 7 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो अभी 7 महीने का डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूंगा, 1,30,600 इंटू 20% इंटू 7/12. क्लियर है. जब तक पूरे साल का था तो मेरे को मंथ में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा था, पर अभी क्योंकि मेरे को सिर्फ 7 मंथ्स का चार्ज करना है, सो आई चार्ज इट फॉर 7 मंथ्स. तो 1,37,600 इंटू 20% इंटू 7, क्योंकि 7 मंथ्स का चार्ज करना है, डिवाइड बाई 12, तो कितना आया 16,053. अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई मेरे पास एट द एंड ऑफ 31 जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई को मेरा प्लांट ही खत्म हो गया है, तो वैल्यू मेरे पास 31 जुलाई को कितनी है 1,21,547. क्लियर है. अब मेरी प्लांट की वैल्यू इतनी है इस डेट को. अब मेरे को लॉस हुआ क्योंकि इस वैल्यू के अगेंस्ट में मुझे क्या रिकवरी है, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया कि मैं इस वैल्यू के अगेंस्ट में 50,000 दूंगा. सो द रिमेनिंग इज माई लॉस. क्योंकि अगर आपने एक चीज, कोई भी चीज, अगर आप लेट्स से यू बाय योर लैपटॉप 1 लाख रुपए का खरीदा, पर अब वापिस अगर आप उसे बेच रहे हो 50,000 में, तो 50,000 इज योर लॉस. So here also you have a value of your plant is 1,21,547, but the insurance company is paying me only 50,000. So the remaining will be my loss, which I am going to charge from the profit and loss account. The amount is 71,547. So now let's understand and prepare. He said plant account banao. So plant account, the formalities of the ledger remains same. And now let's start. 1st January को 21 को plant खरीदा तो टू बैंक किया 2,15,000 से. That's the first entry.
अब 31 दिसंबर 21 को क्या होगा? अब 31 दिसंबर 21 को जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा या नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहनी है प्लांट की वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन यहाँ पर प्लांट पे चार्ज किया नहीं, असेट पे चार्ज नहीं किया, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रखना है मुझे प्लांट को। सो दैट विल रिमेन 2,15,000 बैलेंस ईडी। अब अगेन दिस विल बिकम माई बैलेंस बीडी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये तो सेम चलने वाला है। मैंने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही, तो इस यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लांट अकाउंट किस पे मेंटेन होना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 21 जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे उसमें प्लांट की वैल्यू कितनी आई? 2,15,000, दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। अब सेम वे अगर नेक्स्ट ईयर बनाओगे 2022 में, तो आपके पास बैलेंस शीट कितना रहेगा? वही 2,15,000। सो द बैलेंस और वी कैन से वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ ईयर 2 विल रिमेन सेम, ओरिजिनल कॉस्ट पे 2,15,000, बिकॉज वी हैव नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं जी 23 में क्या हो। और 23 में आपके पास 2,15,000 है, बट मेरा प्लांट तो चला नहीं, 7 महीने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरे को अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन मैंने अलग से किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्योंकि मैंने बताया था जब भी मैं प्लांट सेल करता हूं, क्लियर, या प्लांट में कुछ मिस हैपनिंग होती है, जैसे यहाँ पर फायर की वजह से जल गया, या प्लांट की लाइफ पूरी हो जाती है, तो मैं उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अमाउंट डाला है, दैट आई ट्रांसफर टू दैट एसेट अकाउंट, क्योंकि अब उस एसेट को क्लोज करना है और मेरे को देखना है कि कितनी वैल्यू है उस एसेट की। अगर पूरी लाइफ चलती है तो जितना डेप्रिसिएशन हुआ है उतना ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू नजर आएगी, और वो रिमेनिंग जो भी अगर रेजिडुअल वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है दैट विल रिमेन। यहाँ पर देखते हैं, अब क्योंकि 31 जुलाई को आग लगी तो मेरे को अब यहाँ पर अब मैं जितना भी डेप्रिसिएशन मैंने एक्यूमुलेट किया इस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा। सो लेट्स प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइक आई सेड, वंस व्हाट एंट्री डू यू पास? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लाइक वी डू इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। पर क्रेडिट स्ट्रेट लाइन में मैं क्या करता हूँ? ओरिजिनल कॉस्ट में रखने के लिए, सॉरी, एनबीवी पे रखने के लिए मैं क्या करता हूँ? एसेट को क्रेडिट करता हूँ, चार्ज करता हूँ एसेट को, तो एसेट रिड्यूस होती है। पर यहाँ पर मैंने एसेट को क्रेडिट नहीं किया, मैंने एसेट को छुआ तक नहीं। मैं क्या करूँगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं उसकी एंट्री देखूँ तो क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि मैं अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पोस्टिंग क्या होगी? बाय डेप्रिसिएशन। गुड, सो बाय डेप्रिसिएशन। अब कितना अमाउंट है? 43,000 विच वी कैन सी फ्रॉम द वर्किंग नोट फॉर 2021। अब यहाँ पर जी कितना आएगा बैलेंस में? क्योंकि यहाँ पर 43,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 43,000। अब नेक्स्ट ईयर मैं इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करूंगा एंड माय डेप्रिसिएशन जो मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड किया नेक्स्ट ईयर एट द स्टार्ट 1 जनवरी 22 43,000 का आ गया। अगेन 2022 के लिए मैं फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, पर अब डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा? 43 नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है। और हम अगर वर्किंग नोट में देखें तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 34,400। सो 34,400 हमने सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो अभी टोटल अमाउंट कितना होगा? 77,400। सो नाउ दिस बिकम माई बैलेंस सीडी एट द एंड ऑफ ईयर 2। एक्यूमुलेट हो रहा है। फर्स्ट ईयर मैंने 43,000 चार्ज किया, सेकंड ईयर में मैंने 34,400 चार्ज किया, तो टोटल मैंने 77,400 चार्ज किया। तो मैं एक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें मैं अपना डेप्रिसिएशन का बता रहा हूँ कि हर साल कितना कितना चार्ज हो रहा है। और नाउ लेट्स सी इट बिकम माई बैलेंस बीडी फॉर द ईयर 1 जनवरी 2023 77,400 ब्रॉड फॉरवर्ड। अब डेप्रिसिएशन कितना लगना है? क्योंकि 31 जुलाई को प्लांट में डिस्ट्रॉय हो गया तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन लगना है। और वर्किंग नोट में देखें तो हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने थर्ड ईयर में? 16,053। दैट्स द वन थिंग। अब इसको टोटल कर देते हैं तो अभी कितना हुआ? 93,453। पर क्योंकि 31 जुलाई को अब क्या हुआ? अगर हम जब प्लांट अकाउंट मेंटेन करें 31 जुलाई को हम रुक गए, क्योंकि मेरे को अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट में ट्रांसफर करना है। तो यहां पर मैं बैलेंस शीट ना लिख के 31 जुलाई मैं क्या करूंगा? टू प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया मैंने? 93,453। अब यही प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा तो 93,453 मैंने यहाँ पर अपना प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि नाउ आई एम क्लोजिंग द प्लांट अकाउंट। तो आई नीड टू नो कि रियल वैल्यू कितनी है मेरे प्लांट की, तभी मुझे प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा। अब अगर कुछ आग लग गई तो उससे हमें कैलकुलेट करेंगे ना हमें कि उस आग के कारण कितना लॉस हुआ है, मुझे कितना इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, कितना नहीं दे रही है। तो बेस्ड ऑन दैट और मेरी एक्चुअल वैल्यू उस डेट को क्या है, क्योंकि मैंने 7 महीने तो यूज किया है, इसका मतलब मैंने 7 महीने का डेप्रिसिएशन लगा और उससे पहले
21 में पूरे साल का लगा, 22 में पूरे साल लगा और 23 में 7 महीने का लगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो जितना भी वैल्यू रिड्यूस हुई, जब हम नेट बुक वैल्यू पे दिखाते हैं इन द फर्स्ट एग्जांपल, तो हम साथ के साथ हर ईयर हम असेट की वैल्यू डिक्रीज करते रहते हैं। पर यहाँ पर मैंने असेट की वैल्यू मेंटेन कर रखी है ओरिजिनल कॉस्ट में। सो नाउ आफ्टर 2 years and 7 months I have to transfer the total depreciation I have charged against this asset to know कि एक्चुअल नेट बुक वैल्यू 31 जुलाई को कितनी है। तो इसलिए मैंने 93,453 मैंने वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर ₹50,000 वाज एडमिटेड। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है, इसलिए मैं उसे एज ए डेटर बना रहा हूँ। उसने पे नहीं किया, अगर पे करते तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट करता, पर अभी क्योंकि उन्होंने देना है पैसा तो मैंने इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट किया और प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया। तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया, इसलिए बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 50,000 से ट्रांसफर कर दिया। अब क्या बचा? अब देखो 2,15,000 टोटल है और यहाँ पर जितना डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कंपनी से आना था वो पैसा आ गया। तो अभी भी डेबिट साइड में बचा हुआ है, क्योंकि बैलेंस मेरे पास जो आएगा दैट विल बी माई लॉस विच इज 71,547। तो इस तरह से हमने अपना अकाउंट मेंटेन किया और हमने निकाल लिया कि 71,547 is my loss that will be transferred to the profit and loss account because of destroy of the asset by fire. तो now you got to know कि प्लांट अकाउंट कैसे बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। इफ आई समराइज, स्टार्ट योर क्वेश्चन विद 3 एलिमेंट्स सो दैट यू नो कि वैल्यू ऑफ असेट सबसे पहले निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद कि मुझे स्ट्रेट एंड मेथड यूज करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करना है, दैट्स द सेकंड। थर्ड इज अकाउंटिंग क्या होगी। अकाउंटिंग असेट पे चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे को असेट की वैल्यू एट नेट बुक वैल्यू में बैलेंस शीट में दिखानी है। और अगर असेट डेप्रिसिएशन को मैं असेट से चार्ज नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है, असेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें 21 में 2,15,000 का वैल्यू मेंटेन करी, 22 में 2,15,000 का वैल्यू मेंटेन, इसका मतलब मेरे को असेट को अपना ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना। I hope now it's all things are clear. I have provided you stepwise how to move to solve a question and how to apply the concept which we understood in part 1. So go through with this. Any issues, any questions, comment box में ज़रूर लिखना. I'll answer and clarify all your doubts. Take care. Bye bye.